Welcome friends, welcome to the course of Industrial Engineering. Today we are going to study field of application of industrial engineering. It is a very interesting topic and you will come to know that what is the application of industrial engineering as a course. When you go to your fourth year, you will able to study about OR, that is organization research, operation research, in which you will see different theories. OR is also a part of industrial engineering, and when you are going for further study like MTech and PhD, you will come to know that the different small topics of OR and industrial engineering is in broad sense, and you will do your MTech thesis as well as PhD, 4 year or 5 year PhD on that small topic. But in the BTech level, we only learn a small introduction about industrial engineering. Now come to the point. As always, we will write point by point what is the application of industrial engineering. Please make a practice of writing point by point in your exam also, so that examiner will able to know exactly what you wanted to write and you will get maximum mark for that. Okay, so please be make practice for point wise answering. Now we are going to start field of application of industrial engineering. Write first point, the main aim of tools and techniques. Writing, as I am telling you, write a notes. If needed, you will comment on video. I will provide the PPT as well as lecture notes for that. Okay. The main aim of tools and techniques of industrial engineering is to improve, mark the line, is to improve the productivity of organization by optimum utilization of organization resources, main material and machine. I am repeating again, maybe word will be up and down. The main aim of tools and techniques of industrial engineering is to improve the productivity of organization by optimum utilization. I am writing a word, optimum utilization, optimum utilization of organization resources, organization resources. And what is organization resources? Main material and machine. You will write equipment also. In equipment, you will cover machines. We already discussed MMEE. Your energy is also in there. You will write energy also in this sequence. Equipment comes under machine, so don't worry. Means optimum utilization. What do you mean by optimum utilization? Means
at a level where the organization will get profit, maximum profit at the cost of minimum investment. It does not mean that your product standard will go deteriorate so that you will get maximum profit. No, not at all. Optimum utilization means a level where you will balance with standard as well as organization resources, and you will get maximum profit for that. Got it? Balance. Optimum utilization means a type of balance. And what type of balance? Means you have to balance with organization resources, standard of your product, and making maximum profit. Got it? Organization resources, as we already discussed, mean you will select a specific job for the specific man. मीन्स किस आदमी को क्या काम देना है वो भी आप सीखेंगे। ठीक है, अगर कोई लेबर क्लास का आदमी हो, लेबर क्लास का आदमी मीन्स अगर उसकी पढ़ाई 8 या अनपढ़ या 5वीं तक हो तो उसको हम लोग मैनेजेरियल वर्क नहीं देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज है, इस मटेरियल का क्या बनना है, वेस्टेज ना हो। ठीक है, वो हम लोग को देखना है। मशीन, उस मशीन का ऑप्टिमम यूज मतलब क्या, फिर वही बोल रहे हैं, मशीन के टर्म में ऑप्टिमम का मतलब इतना भी हम लोग मशीन को रन ना कराएं कि वो सीज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग को इससे मैक्सिमम प्रोडक्ट बनाना है एट द कॉस्ट ऑफ लो वियरिंग ऑफ आवर मशीन, यानी मशीन में कोई डैमेज वगैरह भी ना हो। ठीक, और एनर्जी जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन एम एंड टूल्स एंड टेक्निक फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस बैलेंस। ठीक है, इसको हम लोग एक तरह बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड हम लोग पढ़े हैं फिजिक्स में। तो थ्रेशोल्ड मतलब भी एक ऑप्टिमम पॉइंट ही होता है, उसके बाद कुछ नया या कुछ अलग चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इसको थ्रेशोल्ड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मींस अ बैलेंस बिटवीन स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट, minimum utilization of resources, and getting maximum profit for your organization. Got it? Now write point by point the application of industrial engineering. What is point by point? First point, production planning and control. Write down first point, production planning and control. We already discussed in our yesterday lecture what is production planning and what is production planning and control, and it is the first application. Means you have to plan according to your resources like material, man and machine, so that production will be maximum. Or we already discussed that optimum utilization, with the help of optimum utilization you will use your resources optimum, so that your profit will be high. Okay, next point,
इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल we will discuss later what is inventory in detail, but here I want to tell you what is inventory mean. For your knowledge purpose, inventory means only the raw material or the parts that is used in your organization. Means you have to control your inventory so that control inventory means कट कर दीजिए या बात ले जाओ दादा किसका है inventory control means you have to purchase inventory in that manner so that in your room where inventory is there will not get diminished. Inventory control means किसी एक रूम में या कहीं भी अगर इन्वेंट्री रखा हुआ है वो खराब ना हो। अगर हम लोग ज़्यादा मंगा लेंगे तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे और यूज ना करने पे यहाँ भी हम लोग को लॉस हो सकता है। If we able to control our inventory in proper manner so that there will be a buffer we will discuss. Buffer means when amount of raw material is in processing, some amount of raw material will be in line so that there will not be shortage of your inventory. But it इन्वेंट्री की शॉर्टेज भी ना हो और इतनी भी इन्वेंट्री ना हो कि वो खराब हो जाए। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखेंगे। आप टॉपिक के अलावा कुछ 2-4 लाइन जरूर लिख लेंगे जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ लेकिन लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है? इन्वेंट्री कंट्रोल में 1-2 लाइन लिखना चाहे दे सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तब भी पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, तब भी इवेल्यूटर या एग्जामिनर समझ जाएगा ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। थर्ड, जॉब इवोल्यूशन, as I discussed in initial definition of or initially para of field of application of industrial engineering, you will have to give a job to best suitable men. Job evolution means you have to give a best suitable job for best men. किसी एक आदमी को उसके क्षमता के अनुसार ही काम देना चाहिए, ठीक है? ये हमारा क्या है? जॉब इवोल्यूशन, और उसी के हिसाब से हम लोग को इवेल्यूट करना है। इवेल्यूट मतलब क्या वो आदमी या मेन लेबर वर्कर उस स्पेसिफिक काम को अच्छे से निभा पा रहा है कि नहीं, ठीक है? उसके भी कुछ टेक्निक्स होते हैं जॉब इवोल्यूशन के, जीआईटी वगैरह, ठीक है? वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? आगे जब हम लोग पढ़ेंगे जस्ट इन टाइम, या आप लोगों को फोर्थ में टॉपिक होता है टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट में, उसमें भी कुछ जगह है, ठीक है? तो वहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में जॉब इवोल्यूशन में कि हाउ a job is going to be evaluated. Next point, facilities planning and material handling. Facilities planning
and material handling. Facilities planning and material handling, I already discussed a scientist named Frederick W. टेलर, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उन्होंने क्या किया था, he was a mechanical engineer by the profession and he worked in a blast furnace. blast furnace पे वो काम कर रहे थे जो मैकेनिकल इंजीनियर। तो उन्होंने देखा कि जो सोवेल है, सोवेल जिसको हम लोग हिंदी में बेलचा कहते हैं, ठीक है, सोवेल की डिजाइन कुछ ऐसे थी कि जो लेबर या वर्कर काम कर रहे थे वो उसको हैंडल करने में थक जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, इसके सोवेल के डिजाइन में मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको ऐसा बनाया गया so that the labor or worker will able to handle the shovel easily and reduces 25% of work loss। जो वर्क लॉस हो रहा था 25%, उसकी वजह से उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे मटेरियल हैंडलिंग में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग मेटल को हैंडल कर सकें सो दैट उसमें टाइम बर्बाद ना हो हमारा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, जो डिफरेंट सिस्टम्स होंगे फॉर प्रोडक्शन, उनकी एनालिसिस करना। ठीक है, कितने टाइम में वो किसी वर्क को ख़त्म कर रहे हैं विथ इफेक्टिवनेस के साथ, कितने जल्दी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो हमारा सिस्टम एनालिसिस में है। ठीक है, नेक्स्ट, लीनियर प्रोग्रामिंग। We will discuss it later. I am not going in deep of linear programming, क्योंकि ये ऐसा है जिसको हम लोग एक मिनट में डिफाइन या बता नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग जब इस पोर्शन पे आएंगे तो डिटेल में समझेंगे। ये लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग आई में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में एज वेल एज ओआर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगला सिमुलेशन। As we already know that by simulation we will get optimization of work or optimization of testing. Simulation is nothing but a software techniques. With the help of different software we will able to understand what is the best suitable way or best suitable method for our production. Got it? Next point. Network analysis. नेटवर्क एनालिसिस में पार्ट एंड सीपीएम, ये दो अलग अलग हैं। पार्ट सीपीएम हम लोग ओआर में पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च में। नेटवर्क एनालिसिस मीन्स we have to make a network so that our work will be held in shortest time with efficiency.
यानी इफिशिएंसी के साथ हमारा कोई काम कितने कम से कम समय में हो पाए, वो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में देखेंगे बाय टू थ्योरी, पार्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ मेथड, दैट इज सीपीएम। पार्ट और सीपीएम ओआर में आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग बस एप्लीकेशन ऑफ आई में देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, क्यूइंग मेथड। क्यूइंग मेथड, क्यूइंग मेथड मीन्स हम लोग आज से पहले कितनी बार लाइन में खड़े हुए होंगे, ठीक है। तो क्यूइंग मेथड इज नथिंग बट और क्यूइंग मॉडल mean are nothing but a method or model in which we discuss about queuing. Queuing means your work is going efficiently in a serial manner, ठीक है। तो सीरियल मैनर में या इफिशिएंटली वन बाय वन कैसे ये क्यूइंग होता है, इसमें डिफरेंट अलग अलग मॉडल होते हैं। बाकिंग, जैसे बैंक में आप लोग जाते हैं, वहाँ हम देखते हैं डिफरेंट लाइन होती हैं, ठीक है। जहाँ छोटी लाइन होती है जल्दी आदमी वहीं जाता है, अगर छोटी लाइन पहुँचते पहुँचते काउंटर बंद हो जाए तो फिर आपको दूसरी लंबी लाइन लगना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्यूइंग मॉडल में या क्यूइंग मेथड में हम लोग ये डिफरेंट मेथड देखेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यू देखेंगे, ठीक है। और क्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लोग होते हैं, जो वो हरकतें करते हैं, बीच में घुसना या एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में पहुंच जाना या छोटे लाइन में घुसना, ठीक है। ये अलग अलग क्यूइंग लाइंस हैं, ठीक है। क्यूइंग मॉडल में ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, असाइनमेंट, ठीक है। ये सब के सब हम लोग जब फोर्थ में आएंगे, ओआर एक सब्जेक्ट है, ओआर एक सब्जेक्ट है, ओआर में हम लोग पढ़ेंगे असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हम लोग को बस यहाँ पे एप्लीकेशन जानने हैं। ओआर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप अपने एमटेक या पीएचडी में जाएंगे तो आप किसी भी एक पॉइंट से ही अपनी पीएचडी या एमटेक की फीस कर सकते हैं। तो असाइनमेंट से करना चाहिए, इसी में आपकी पीएचडी हो जाएगी। या क्यूइंग से करना चाहें या नेटवर्क, यानी जब आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ब्रांच में जाएंगे, उसमें आप हाई स्टडी में जाएंगे, एमटेक या पीएचडी में, या जो रिसर्च करते हैं उनमें वो एक एक पॉइंट से ही उनकी रिसर्च थीसिस बन जाती है। असाइनमेंट प्रॉब्लम से ही 4 साल वो रिसर्च कर ली है, या क्यूइंग मेथड से या नेटवर्क एनालिसिस से, ठीक है, या जॉब सीक्वेंसेस से, लीनियर प्रोग्रामिंग से ही, ठीक है। तो ये एक वर्ड नहीं है, ये एक पूरा ब्रॉड एरिया है जो हम लोग को अपने हाई स्टडी में, और अगर फोर्थ में ओआर सब्जेक्ट आप लोग उस टाइम रहता है के टू में, तो ओआर सब्जेक्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, प्लीज राइट पॉइंट बाय पॉइंट द एप्लीकेशन so that you will able to get a maximum knowledge from me. Sequencing and transportation models. Sequencing and transportation model, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल ये भी हम लोग ओआर में पढ़ने वाले हैं, कैसे बेस्ट सुटेबल वे में सीक्वेंसिंग किया जाए कि हम लोग को वहाँ टाइम लॉस भी ना हो और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए उसका, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये मैं सारे पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको मुश्किल से 5-6 से ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप सब पढ़ेंगे तभी जाके आप लोग को 10 पॉइंट याद रहेंगे, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन से आपसे कोई पूछेगा तो ये अलग 10 पॉइंट आप बता देंगे अलग अलग, तो भी आपको अच्छी नॉलेज है।
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। ठीक है, अगला क्या है, गेम्स थ्योरी। ये सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ बस इसके एप्लीकेशन समझिए। गेम थ्योरी क्या होता है उसको डिटेल में नहीं जानना हम लोग। ठीक है, गेम थ्योरी या इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम लोग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। गेम थ्योरी एंड लिखते हैं और नहीं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, गेम थ्योरी एक साइंटिस्ट के नाम पे है, उनका जो थ्योरी था उसके हिसाब से। ठीक है, या डायनेमिक यानी उस इंस्टेंट पे कैसे रिएक्ट करना है उसके उसके बारे में ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, शायद गेम थ्योरी आपके ओआर में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग समझा जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट, ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी ग्रुप टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बाद में और आगे। स्टैटिकल टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, नेक्स्ट और क्या हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, याद रखेंगे इतने ढेर सारे एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, सो मच सो वास्ट। ठीक है, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये आप लोग के लिए जब फोर्थ क्रॉस करेंगे इंडस्ट्री में जाएंगे तो एक तरह से ग्रंथ है आपके लिए ये। जैसे गीता ज्ञान होता है वैसे आगे जाएंगे प्रोडक्शन में, तो ये आप लोग के लिए कंपनियों में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक ग्रंथ की तरह है। ठीक है, इतना कुछ नॉलेज होने का मतलब आप लोग को बहुत कुछ आता है इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसको ध्यान से हम लोग समझेंगे। क्वालिटी कंट्रोल एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है इंडस्ट्री में, क्वालिटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। क्या है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग थ्योरी। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं, ये कुछ टॉपिक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है और कुछ टॉपिक हम लोग को ओआर में मिलेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे टॉपिक सब कवर हो जाएंगे हम लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज वेल एज योर फोर्थ सब्जेक्ट दैट इज ऑपरेशन रिसर्च। डिसीजन मेकिंग थ्योरी, कैसे कोई एक डिसीजन हम लोग को लेना है उस पर डिस्कशन करेंगे। रिप्लेसमेंट मॉडल, how you will going to replace a defective material with a best suitable raw or best suitable product। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे रिप्लेसमेंट मॉडल। नेक्स्ट, असेंबलिंग लाइन, असेंबली लाइन बैलेंसिंग। असेंबली लाइन बैलेंसिंग में वेदर आई डोंट नो यू आर गोइंग फॉर असेंबलिंग प्लांट और नॉट। अगर आप लोग गए होंगे तो वहाँ पे डिफरेंट असेंबली लाइन होती हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं। पहले क्या होता है, उसके बाद अगले प्लेटफॉर्म पे क्या होना है, क्या असेंबल होना है, फिर अगले प्लेटफॉर्म पे क्या असेंबल होना है, और लास्ट में जो हमारा इन प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल कार या बाइक जहाँ पे असेंबल हो रही हो। ठीक है, तो पहले क्या असेंबल करना है, इसकी भी एक बैलेंसिंग और एक प्लानिंग होती है, असेंबली प्लानिंग, सो दैट
हम लोग किसी भी चीज़ को जल्दी में और कम समय में विथ इफिशिएंट, ठीक है, एफिशिएंटली इसको कैसे बनाया जाए, असेंबल किया जाए कम से कम टाइम में, ठीक है, और एफिशिएंट मैनर में, कि हमारा जो प्रोडक्ट हो वो रिजेक्ट ना हो, क्वालिटी में भी अच्छा हो, ठीक है। तो वो सब हम देखेंगे असेंबलिंग लाइन एंड बैलेंसिंग में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और भी हो सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। हम लोग यहाँ बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं, आगे आप कंपनी में जाएंगे हो सकता है देखेंगे कि और भी यहाँ पर एप्लीकेशन है जो बुक में या हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली वो अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है एमआरपी, जेआईटी, आईएसओ, टीक्यूएम। ये एक साथ क्यों लिख दे रहे हैं, ताकि हमारे कई पॉइंट बच जाए। एमआरपी जब हमारा प्रोडक्ट लास्ट में बन चुका है, व्हेन आवर गुड्स आर फिनिश गुड्स आर नाउ रेडी फॉर डिस्पैच, व्हाट विल बी द एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस फॉर मार्केट, ठीक है। तो ये इसके लिए भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर जिम्मेदार होता है कि डिफरेंट पैरामीटर को इंक्लूड करके वो उस प्रोडक्ट का एमआरपी डिसाइड करता है, ठीक है। जेआईटी भी एक मेथड है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ठीक है। तो ये जेआईटी भी एक मेथड है कि कितने समय में कोई प्रोडक्ट हमारा बनेगा, ठीक है, एक एग्जैक्ट टाइम विथ सम approx time extra, not much time, so that your product will be completed in exact given time, ठीक है। ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं थे, फिर भी उससे कुछ अगर अलग अलग क्राइटेरिया डिपेंड करता है, कुछ सेकंड एक्स्ट्रा या कहीं कहीं पे कुछ मिनट एक्स्ट्रा, कहीं कहीं पे अगर ज़्यादा बल्कि है तो कुछ घंटे भी होते हैं, और ज़्यादा बल्कि होते हैं तो वो कुछ दिन भी एक्स्ट्रा लोग टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जस्ट इन टाइम में हम देखेंगे। आईएसओ, ठीक है, हमारे जो एंड प्रोडक्ट है उसको हम लोग किसी भी एक बेंचमार्क, आईएसओ क्या एक बेंचमार्क सेट करता है, एक ग्रेडिंग सेट करता है, सो दैट आवर प्रोडक्ट विल कम्पीट इन मार्केट एंड यूजिंग दिस आईएसओ टैग, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें हम लोग डिफरेंट आईएसओ देखेंगे। आप लोग कहीं कहीं सुने होंगे आईएसओ $9001, 9002, ये सब क्या होता है, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। बगल में दिख रहा होगा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें हम लोग डिफरेंट आईएसओ देखेंगे। क्वालिटी क्या होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की, क्या सेट क्राइटेरिया है, वो हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है हमारे फोर्थ ईयर में, उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो टुडे लेक्चर इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फ्रॉम टुमारो लेक्चर बात करें। Now let's discuss some examples of how the production and consumption of company increases। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, ठीक है, और आप लोग को सुन के बहुत अच्छा भी लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। जो इट इज नाउ इट इज
theory subject, you will definitely getting bored. But I want to share a story, small story about Colgate. कोलगेट के बारे में एक स्मॉल स्टोरी आप लोगों को बताऊं। चूंकि तब से थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए होंगे, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ऐसे ही कंपनी से रिलेटेड मैं आप लोग को कुछ कहानियां, कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा कि जिससे आप लोग उससे रिलेट भी कर सके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से, और आप लोग को पढ़ने में अच्छा भी लगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, लेकिन उसके पहले दो कहानियां। पहली कहानी कोलगेट की। कोलगेट सब यूज करते हैं, घर घर में यूज करते हैं, आजकल इतने ऐड भी आते हैं। बच्ची आजकल सिखा रही है टीवी पे वो अपने पापा को कोलगेट करना चाहिए रोज रात में, सुबह भी करो कोलगेट, बिना कोलगेट किए चाय ना पियो, बिना ब्रश किए कुछ ना करे। तो ये सब इन तरीकों से हम लोग को समझाया जाता है कि हम लोग क्या लेना है। ये हम लोग नहीं है कि जो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या लेना है, ये जो ऐड वाले हैं वो हम लोग को मेंटली फोर्स करते हैं। मेंटली फोर्स इसलिए ये सब्जेक्ट किए क्योंकि पहले तो डराया जाता है एडवर्टीजमेंट के माध्यम से कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा, इसलिए आप मेरा प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे वो हम लोग को मेंटली डरा के या फुसला के हम लोग को अपना प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है कोलगेट का। पहले क्या था, कुछ सालों पहले कोलगेट का कंजप्शन बहुत कम हो गया था। ठीक है, तो कोलगेट के बोर्ड्स की मीटिंग बैठी और उन्होंने सोचा कि कैसे कंजप्शन को बढ़ाया जाए। डिफरेंट बोर्ड्स के मेंबर बैठे, बहुत बड़े बड़े महारथी जो कंपनियों में होते हैं, अलग अलग मैनेजर्स लेके इंजीनियर तक, मार्केटिंग वाले, सेल्स वाले सब बैठे, अधिकारी सब। तो उन्होंने कई घंटे डिस्कशन किया और डिस्कशन करने के बाद एक छोटा सा उसका सॉल्यूशन निकला। छोटा सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कोलगेट पहले क्या था, कोलगेट का जो माउथ था, माउथ पे जो होल है वो होल छोटा है करता था, यानी जो उसमें से प्रोडक्ट निकलता था वो कम निकलता था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना कंजप्शन बढ़ाने के लिए सिर्फ उसका जो माउथ है उसको इंक्रीज कर दिया। अब आप सोचेंगे माउथ को इंक्रीज करने से कंजप्शन कैसे इंक्रीज हो जाएगी? सोचिए, सोच लिए होंगे। ठीक है, कभी भी आप जब पेस्ट बाहर करते हैं, पेस्ट को पुश करते हैं, जितना पेस्ट बाहर आता है क्या उसमें से बचा हुआ पेस्ट आप ट्यूब में डालते हैं? क्या नहीं डालते होंगे, डाल ही नहीं सकते उसको, या तो इतने खाली हो बैठ के डालते रहिए, इतना सुबह सुबह किसी के पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो जितना वो एक्स्ट्रा निकलता है हम लोग क्या करते हैं, ब्रश में लेके यूज कर लेते हैं। तो होल बड़ा करने से क्या हुआ, एक्स्ट्रा जो कोलगेट का जो पेस्ट है वो ट्यूब से बाहर आना शुरू हुआ। जब एक्स्ट्रा ट्यूब से को जो पेस्ट है ट्यूब से बाहर आना शुरू हुआ तो लोग उसको अंदर नहीं डालते थे ट्यूब के अंदर, और उसको सोचते थे चलो ठीक है यूज कर लेते हैं, तो उसको यूज करना शुरू कर दिए। तो ऐसे इतने छोटे से डायमीटर को वो इंक्रीज करके कोलगेट का कंजप्शन बढ़ा दिए। सोचिए, यानी कितना छोटा सा एक तरीका है कंजप्शन। वो एक से एक फ्री नहीं किए, टूथपेस्ट आपको, टूथब्रश आपको फ्री में नहीं दिए, या बड़े कोलगेट साथ छोटा कोलगेट नहीं फ्री में दिए है, क्या कि एक डायमीटर इंक्रीज कर दिए, और डायमीटर इंक्रीज से उनका कंजप्शन इंक्रीज हो गया। एक और आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, और इस एग्जांपल का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री ने भी किया है। निरमा, निरमा का नाम सुने होंगे आप लोग। निरमा मार्केट में तो बहुत पहले से है, लेकिन टीवी पे इसका ऐड आना अभी शुरू हुआ। टीवी पे आप देखे होंगे, शायद ऋतिक रोशन उसका ऐड करते हैं निरमा का। तो निरमा ने क्या किया, मार्केट पकड़ने से के लिए उन्होंने उनका जो टारगेट ऑडियंस था या जो टारगेट लोग थे वो गांव के लोगों को बनाया। ठीक है, क्योंकि गांव में पहले इतनी टीवी या इतनी जानकारी नहीं थी क्या या कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो उन्होंने गांव गांव जाके अपने प्रोडक्ट को डिलीवर किया। निरमा को गांव गांव जाके वो निरमा को डिलीवर किया उन्होंने, और वहां से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई। अब देखिए, विदाउट एक्सपेंसिंग
crores of rupees on actor और any celebrity in advertisement। उन्होंने क्या किया, गांव गांव जाके मार्केटिंग की, और मार्केटिंग में उन्होंने निरमा को इतना फेमस कर दिया कि अब आजकल वो टीवी पे आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर ही सोचता है कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या हो। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ही ये सब है, सेल्स भी आ गया। ठीक है, एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग यू हैव टू डू ऑल योर वर्क्स। ठीक है, नाउ दो कहानियां खत्म हुई, आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। एक टॉपिक है दैट इज नोन एज प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे थे, क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होता है। नाउ वी कम टू द आवर यूनिट नंबर 1 दैट इज प्योरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है? ठीक है, सोच लीजिए क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग मशीन डिजाइन पढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डेफिनेशन भी मशीन डिजाइन से कुछ रिलेटेड है। जो मशीन डिजाइन से रिलेटेड है, पहले मैं मशीन डिजाइन का डेफिनेशन बताता हूँ, फिर हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डेफिनेशन देखेंगे, फिर आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे कि कहाँ कहाँ ये बाइफर्केट है डेफिनेशन में। ठीक है, तो मशीन डिजाइन डेफिनेशन क्या होता है, वैसे आप लोग अगले सेमेस्टर में आके पढ़ेंगे मशीन डिजाइन। पहले ये 2 सेमेस्टर में हुआ करता था, लेकिन यूपीटीयू ने अब इसको चेंज करके एक सेमेस्टर में कर दिया है। सिलेबस अभी नहीं आया है, सिलेबस आती है आप लोग समझ जाएंगे क्या क्या उसमें है, क्या चेंजेस हुआ है। लेकिन मशीन डिजाइन होता है क्या है, इट इज नथिंग बट क्रिएटिंग ऑफ न्यू मशीन, क्रिएटिंग ऑफ न्यू मशीन और modification of existing one with the help of engineering formulas and theory in economical manner। ठीक है, तो इकोनॉमिकल इसमें भी है, इंजीनियरिंग फॉर्मूला इसमें भी है, थ्योरी डिफरेंट थ्योरी भी। ठीक है, क्रिएटिंग इसमें भी है और मॉडिफिकेशन इसमें है। ठीक है, अब मैं आप लोग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट का डिफिनेशन बताता हूँ। तो क्या होता है इन जनरली। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग, इनोवेटिंग और डेवलपिंग entirely a new product। राइट विथ मी, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बोर्ड पर नहीं लिखवाने वाला हूँ। ठीक है, तो हमेशा दिखते रहेंगे। ठीक है, लिखेंगे इन जनरल, द प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग, इनोवेटिंग और डेवलपिंग entirely a new product, और प्रेजेंटिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखे थे हम लोग, वहां पे क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, कॉमा देके वो मशीन डिजाइन था। न्यू प्रोडक्ट के बाद कॉमा देके और प्रेजेंटिंग एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट विथ इनहेंस यूटिलिटी। कोई एक प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी एग्जिस्ट कर रही है, उसमें यूटिलिटी को और इम्प्रूव करके और इनहेंस करके, ठीक है, उसको प्रेजेंट करना, जिसको हम बोलते हैं कि अच्छे से रैपिंग करके उसको मार्केट में लेके पहुंच गए हम लोग कि अब ये पहले वाले से क्यों अच्छा है। ठीक है, जैसे हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं मोबाइल की, मोबाइल कंपनी तो वही है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है वो अलग अलग है। ठीक है, कोई एक मोबाइल है, फॉर एग्जाम्पल रेडमी है, रेडमी की एक प्रोडक्ट में कुछ और फीचर है, 32 GB कुछ है, मान लीजिए एक्सटर्नल मेमोरी है। 6 महीने बाद या कुछ महीने बाद फिर एक नया फोन आया जिसमें 64 GB है, 64 GB, फिर एक आया वो 128 GB आ गया, एक्सपेंडेबल 1 TB हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, उसमें थोड़ा यूटिलिटी को इनहेंस करके हम लोग उसको मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक थे हम लोग, इनहेंस यूटिलिटी, इम्प्रूव फीचर, मोर अपीलिंग डिजाइन। ठीक है, यानी डिजाइन को मॉडिफाई कर दिया गया जिससे
लोगों का और मनोबल हुआ कि अब डिजाइन मॉडिफिकेशन है, ये और हैंडल करने में आसानी होगी। पहले मोबाइल कितने बड़े बड़े होते थे, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, जो पुराने जनरेशन के लोग होंगे वो देखे होंगे, मोबाइल बहुत बड़े बड़े हुआ करते, ठीक है। फिर छोटे होते गए, फिर फ्लैप पे आए, फ्लैप वाले मोबाइल, ठीक है। फ्लैप वाले मोबाइल में दिक्कतें आना शुरू हुई, तो फिर सिंगल मोबाइल आना शुरू हुआ, ठीक है। तो डिफरेंट अलग अलग फीचर को हम लोग इंप्रूव किए वन बाय वन, ठीक है। मोर अपेयरिंग डिजाइन, डिजाइन को चेंज किया गया, बड़े से छोटा होता गया, ठीक है। छोटे से और छोटा, इतने छोटे मोबाइल भी आप लोग देखे होंगे। कॉमा बेटर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। आजकल आप लोग मोबाइल देखे होंगे कि एक बार खरीदिए और साल भर तक उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत से मोबाइल है आप लोग में, ठीक है। पहले तो सैमसंग के चलते थे, एंड्रॉइड मतलब पहले सैमसंग फोन हुआ करता था, अब तो डिफरेंट मार्केट में आ गए हैं, ठीक है। तो सैमसंग क्यों चलता था? क्योंकि उसकी रिलायबिलिटी अच्छी थी। नोकिया, जो पहले नोकिया हुआ करता था, वो क्यों अच्छा होता था? क्यों? क्योंकि उसकी जो बैटरी होती थी वो लॉन्ग लास्टिंग होती थी, एक बार चार्ज करिए 2 दिन 3 दिन भूल जाइए, ठीक है। तो वो क्या है, क्वालिटी में इंप्रूव किया गया, रिलायबिलिटी और बढ़ गई, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे डिफिनेशन, क्या डिफिनेशन है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज क्रिएटिंग, innovating, or developing entirely a new product, or presenting an existing product with enhanced utility, improved features, more appealing design, better quality and reliability to satisfy the requirement of its end user. end user कौन है? आखिरी में कस्टमर ही तो है, ठीक है। जो कस्टमर है उन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, या क्वालिटी में इंप्रूव करना, रिलायबिलिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। तो ये क्या है? आखिरी में जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, उनके हिसाब से ये सब डिजाइन करके किया जाता है, ठीक है। हम लोग मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं टॉपिक एर्गोनॉमिक्स, ठीक है। तो एर्गोनॉमिक्स में क्या होता है? नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन मैन एंड मशीन, यानी हम लोग अपने प्रोडक्ट को ऐसे डिजाइन करते हैं ताकि जो ह्यूमन नीड है वो फुलफिल हो सके, ठीक है। कितना लिख लिया आप लोग? फिर टॉपिक डालेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीनिंग से पहले आप लोग को प्रोडक्ट के बारे में जानना होगा कि प्रोडक्ट होता क्या है। तो प्रोडक्ट क्या होता है? स्टार बनाएंगे, लिखेंगे प्रोडक्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट मीन्स अ गुड्स, सर्विस, idea or object created as a result of process and offered to serve a need or satisfy a want। यानी आप लोग के इच्छा या आप लोग के चाह के हिसाब से जो कस्टमर, आप लोग मतलब जो कस्टमर, ठीक है, या जो एंड यूजर हैं, उनकी इच्छा या उनके चाह के हिसाब से किसी गुड्स को या सर्विस को या आइडिया को या ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाए, उसमें हम लोग क्या किया जाए? वैल्यू एडिशन करते हैं हम लोग, वैल्यू एडिशन, ठीक है, बाय गिविंग अ यूटिलिटी और बाय गिविंग अ वैल्यू। वैल्यू मीन्स उसमें कुछ प्रॉपर्टी हम लोग, जैसे हम लोग देखे थे एक चौक, कैसे चौक बनता था? कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर है, पाउडर को हम लोग पानी और बाइंडर के साथ मिक्स कर दिए, यानी इसमें हम लोग वैल्यू को ऐड कर दिए, और फिर हम लोग मोल्ड में इसको पोर किए, लास्ट में ड्राई होने के बाद इसको हम लोग बाहर किए और यहाँ पे चौक को यूज कर रहे हैं हम लोग। क्या हम लोग सिर्फ उसे पाउडर को यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। हम लोग क्या किए? पाउडर में वैल्यू को ऐड कर दिए, ठीक है। लिख लेंगे पहले डेफिनेशन। प्रोडक्ट मीन्स अ गुड्स, सर्विस,
idea or object created as a result of a process and offered to serve a need or satisfy a want. इतना कुछ है, यानी इतने कुछ टर्म को लेके हम लोग चल रहे हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, क्या क्या है? गुड्स है, सर्विस है, आइडिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट कोई बनाते हैं, वो भी हमारे किसमें प्रोडक्ट में आते हैं। वांट के बाद स्टॉप करके एक लाइन लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। एक लाइन लिखेंगे, डेवलपमेंट मीन्स, अब ये प्रोडक्ट के बारे में था, अब नीचे लिखेंगे डेवलपमेंट। ये देखिए हम लोग अलग अलग प्रोडक्ट और डेवलपमेंट देख रहे हैं, डिफिनेशन उसका, बट इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी एज ए होल प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक लाइन लिख लेंगे, लास्ट लाइन, देन डेवलपमेंट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग। क्या है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, प्रोग्रामिंग, सॉरी, प्रोग्रेसिंग एंड डेवलपिंग। ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग एंड डेवलपिंग, सॉरी डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इसे में, हाँ, डेवलपिंग। तो ये क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एज ए होल डिफिनेशन। ये हम कल देखेंगे प्रोडक्ट क्या होता है। देख लिया हम लोग, डेवलपमेंट क्या हो गया? ग्रोइंग, प्रोग्रेसिंग एंड डेवलपिंग, यानी हम लोग उसमें कुछ वैल्यू या कुछ आइडियाज ऐड करते हैं, ठीक है, सो दैट वी विल गेट अ गुड एंड प्रोडक्ट। That's all for now. From tomorrow we will see combinedly product development, function of product development and product development process. Thank you for now.